Good morning, student. Today we will study our student advisor book of mathematics class 7. So in our previous video we have completed question number 4 of practice to be perfect 2.2. So in this video we will start with question number 5 and try to complete the exercise. I will show the previous work to you. Then we started practice to be perfect 2.2 and we did first question, second question, third question, fourth, and we will start fifth now. So in the fifth question we will take it, evaluate 3 1 by 4 into 12 by 39 minus 2 by 3 minus 3 by 7. So we can see the two brackets. So in our first bracket we are watching that 3 1/4 into 12 by 39 and 2 by 3 minus 3 by 7. So we will evaluate our first bracket first and the second bracket second. So 3 1/4 into 12 by 39. 3 1/4 into 12 by 39 minus 2 by 3 minus 3 by 7. It's our question, nothing else. Then we will start evaluating. Then it's like, what is this? We can see that it is a composite fraction. We studied it earlier. No, it is not in our syllabus till now. So I will explain you firstly this. So it's a composite fraction. Then what will it be? 4 3s are 12. What we do? अपन क्या करते हैं इसमें अपन इन दोनों को मल्टीप्लाई करके नीचे, जैसे ये डिनोमिनेटर में जो दिख रहा है ना मेरे को वही रहेगा, जो डिनोमिनेटर में मुझे दिख रहा है वही रहेगा, पर न्यूमरेटर में क्या होगा, इसको इससे इंटू करेंगे और यहाँ जो लिखा हुआ है उससे प्लस करेंगे तो ये अपन को फ्रैक्शन देगा. क्या कौन सा फ्रैक्शन? जो अपना सिंपल वाला फ्रैक्शन होता है, व्हाट वी हैव स्टडीड अर्लियर, वो वाला फ्रैक्शन वी विल गेट बाय दिस. सो we will multiply 4 into 3 and then add the numerator in this and the denominator will be same. So into 12 by 39. It is a different bracket. So we will solve the different bracket, different and then we will evaluate it together. So it is minus and 2 by 3 minus 3 by 7. We can see that this is different type of denominators. We have three types of question, that numerator is same, denominator is same and both are different. So it is the case both are different. So we will take the LCM of 3 and 7. Then it will be 3 1 ja 3, 7 1 ja 7. So LCM will be 21. 7 3 ja 21. 21. ठीक है. तो so 3 21. 3 into what equal to 21? I am not explaining it. You can do it by your own. Okay. So 3 into what equal to 21? 3 into 7 equal to 21. So we will also multiply 7 to 2. So 7 to the 14 minus 7 into what equal to that 21. So 7 into 3 is equal to 21. So we will multiply 3 into numerator, which is 3 into 3 equal to 9. Then we will explore it once more. 4 3s are 12 plus 1 13. 4 3s are 12. First we will multiply, then we will add. Okay, it's our work that first we will multiply, then we will add. So first multiply 4 into 12. 4 into 12 plus 1 13. 13 by 4 into 12 by 39 minus 14 minus 9 by 21. So we can see that we can cut this and this. 13 1 ja 13, 13 2 ja 3 13 3 are 39 and we can also cut this. 4 3s are 12. So we can explain it once again that अपन क्या करते हैं, we will multiply numerator into numerator and denominator into denominator. Okay, तो 13 into 12 कर सकते हैं अपन, अपॉन 4 into 39 कर सकते हैं अपन, माइनस 14 minus 9 by 21. किसी को ऐसे समझ में आ रहा है तो ऐसे देख लेना. इसको काट दिया मैंने. 13 1 जा 13, 13 3 जा 19. इसको भी काट दिया. 4 1 जा 4, 4 3 जा 12 और 3 by 3 1 हो जाएगा. और किसी को ऐसे नहीं आ रहा तो अपन को पता है न्यूमरेटर से न्यूमरेटर इंटू करते हैं, डिनोमिनेटर से डिनोमिनेटर इंटू करते हैं. तो 13 into 12 क्या होगा? 13 into 12 होगा 156. अब नीचे देख लेना. यहाँ भी क्या आ जाएगा 156. 4 into 39 इज इक्वल टू 156
और 14 माइनस 9 5 हो जाएगा, 21 हो जाएगा। 156 upon 156, 1 minus 5 by 21. Then we will take LCM again. Then LCM will be 21. 1 into what? 21. 1 into 21 is 21. 21 into 1, 21 minus 5. Then it will solve by 21 minus 5 is 16 by 21. So that's our answer. ओके, सबको समझ में आ गया? अपन ने क्या किया, पहले इस ब्रैकेट को सॉल्व किया, फिर इस ब्रैकेट को सॉल्व किया, फिर दोनों को आपस में सॉल्व कर दिया, जो अपन को लास्ट में मिला। सिक्स्थ क्वेश्चन क्या है? फाइंड द पेरीमीटर ऑफ ए रेक्टेंगुलर पार्क whose लेंथ एंड ब्रेथ इज इक्वल टू दिस एंड दिस मीटर रेस्पेक्टिवली। तो अपन को क्या दिया हुआ है? लेंथ दी हुई है, ब्रेथ दी हुई है, पेरीमीटर फाइंड करना है। पेरीमीटर का फॉर्मूला क्या होता है? पेरीमीटर ऑफ ए रेक्टेंगल इक्वल टू व्हाट? पेरीमीटर ऑफ ए रेक्टेंगल, अपन ने छोटी क्लासेस में पढ़ा है कि पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल होता है 2 इंटू लेंथ प्लस ब्रेथ। ठीक है, ये अपन ने पढ़ा है छोटी क्लासेस में कि पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल इज व्हाट? 2 इंटू लेंथ प्लस ब्रेथ। तो 2 इंटू लेंथ, व्हाट इज गिवन टू लेंथ? लेंथ क्या दी हुई है? लेंथ दी हुई, देखो, लेंथ एंड ब्रेथ आर दिस एंड दिस रेस्पेक्टिवली। रेस्पेक्टिवली का मतलब होता है ये जो पहले लिखा हुआ है इसकी तो पहली वाली है, जो दूसरे नंबर पे लिखा हुआ है इसकी दूसरी वाली है, उसको अपन रेस्पेक्टिवली बोलते हैं। तो लेंथ क्या है? पहले वाला लेंथ लिखा हुआ है तो पहले लेंथ लिखी हुई 45 हाफ प्लस ये क्या लिखा हुआ है? 34 3/4। ठीक है, अब अपन को इसको सॉल्व करेंगे तो मैंने क्या बताया था, जो डिनोमिनेटर है वो सेम रहता है। कंपोजिट फ्रैक्शन से सिंपल फ्रैक्शन में अगर अपन कन्वर्ट करते हैं तो जो डिनोमिनेटर है वो सेम रहेगा, डिनोमिनेटर सेम रहेगा। और इसको इंटू करेंगे पहले इससे, पहले इन दोनों को इंटू करेंगे, फिर ये जो ऊपर लिखा हुआ है इसको ऐड कर देंगे। सेम कहानी इसमें होगी, डिनोमिनेटर विल बी सेम, देन वी विल मल्टीप्लाई 34 into 4 एंड देन वी विल ऐड दिस नंबर विच इज 3। देन वी कैन से 2 into 45 2 90 प्लस 1/2 प्लस 34 4 136 आई थिंक, या 136, 34 4 136 बाई प्लस 3/4। ओके, 2 into 91/2 प्लस 136 प्लस 3 is what? 139/4. We will take LCM of it, 2.4 LCM, because it is the type of fractions that we will consider that different numerator and different denominator. So we will take LCM of the denominators, which will be 4. 2 to the 4 will be the LCM. So 4 will be the LCM. 2 which number will be multiplied with 2? That will come to be 4. Then 2 to the 4. 2 into 91. 2 into 91 is 182 plus 4 1 ja 4, then 139. 2 into 182 plus 139, 9 to 11, 8 4 12, 321 upon 4. So that will be the answer. We will solve it further then it will, मैंने आपको बताया था कि जो ये जो अपन को होल नंबर दिखता है ना, इस होल नंबर को अपन न्यूमरेटर में मानते हैं, तो होल नंबर मल्टीप्लाई किसके साथ होता है? न्यूमरेटर के साथ होता है। तो ये होल नंबर है, ये न्यूमरेटर के साथ इंटू होगा, इस अपन ऐसे मान सकते हैं कि 2/1 है ये, तो ये 1 तो 4 के साथ होगा, 4 रह जाएगा, 2 इसके साथ होगा तो 2 1 जा 2, 2 2 4, 3 2 6। ये सबको दिख रहा है। अब मैं क्या करूं, मैंने क्या सिखाया कि जो कंपोजिट फ्रैक्शन है उससे मैंने आपको जो सिंपल फ्रैक्शन बनाना सिखा दिया। अभी जो डिनोमिनेटर होता है, डिनोमिनेटर विल बी सेम एंड न्यूमरेटर वी विल फाइंड कि जो है ना, यहाँ पे जो लिखा हुआ रहता है नंबर, यहाँ पे जो नंबर लिखा हुआ रहता है उसको इंटू कर देते हैं इस पास वाले से, प्लस कर देते हैं न्यूमरेटर। ठीक है, तो ऐसे अपन बना देते हैं। पर अब मैं क्या करूं, अब मेरे को ये दोनों इसमें दिए हुए थे कंपोजिट फ्रैक्शन में। अब कोई इंसान यहां तक आंसर छोड़ के आता है तो भी दैट्स ओके, पर अपन क्या करेंगे, इसको कंपोजिट फ्रैक्शन में चेंज करेंगे। तो अपन कंपोजिट फ्रैक्शन में चेंज करने के लिए क्या करेंगे, अब मुझे पता है कि अपन ने कंपोजिट फ्रैक्शन से मतलब ये सिंपल वाले फ्रैक्शन में चेंज किया था तो भी डिनोमिनेटर सेम था, तो डिनोमिनेटर तो सेम ही रहना है कुछ भी हो जाए, तो ये नीचे तो 4 ही आना है। अब मैं क्या करूं, अब मैं डिवाइड करूंगी, तो 4 को किससे डिवाइड करूंगी, 6 4 2 से। ठीक है, यही होता है, अपन डिवाइड ही करते हैं। अगर अपन को सिंपल में लिखना है तो भी अपन इसको डिवाइड ही करेंगे। तो 4 1 जा 4, 2 बचा, 2 4 बचा,
तो मेरे पास क्या आ गया 4 6 24, ठीक है 0 2 उतारा, अब 2 से कुछ होगा नहीं, यहाँ 0 लग जाएगा, ठीक है, और ये 2 बच जाएगा। तो 160 टाइम्स गया तो यहाँ तो आ जाएगा 160, ठीक है। ये जो अपने यहाँ आया है, ये जो आंसर आया है ये तो आ जाएगा यहाँ पे, और ये जो अपने पास बचा है नीचे ये आ जाएगा यहाँ पर, तो मेरे पास आ जाएगी 160 2/4। तो 160 2/4 को मैं लिख सकती हूँ 2/4 को। अब मेरे पास कोई फ्रैक्शन है उसको मैं ऊपर नीचे सेम से डिवाइड भी कर सकती हूँ, सेम से मल्टीप्लाई भी कर सकती हूँ, बस ये है कि ऊपर नीचे दोनों में होना चाहिए। तो मैं इसको 2 से डिवाइड कर दूँ, इसको भी कर दूँ, 2 1 जा 2 हो जाएगा, 4 2 जा 4 हो जाएगा। तो 160 into हाफ, एंड ये क्या हो जाएगा मीटर में आएगा क्योंकि पेरीमीटर है, अगर एरिया होता तो मीटर स्क्वायर हो जाता। आई होप सबको समझ में आ गया। अब मैं करूंगी 7th क्वेश्चन। 7th क्वेश्चन क्या है, इन ए क्लास ऑफ 50 स्टूडेंट्स 3/5 आर गर्ल्स, हाउ मेनी बॉयज आर देयर इन द क्लास। तो 50 स्टूडेंट्स है मेरे पास, उनमें से 3/5 क्या है गर्ल्स है और बॉयज कितने हैं ये अपन को निकालना है। तो अब इसके दो तरीके हैं, या तो मैं क्या करूं पहले गर्ल्स निकाल लूं। अब 50 स्टूडेंट्स है तो मैंने ऑफ वाला क्वेश्चन कराया था कि 3/5 ऑफ 50, ठीक है, गर्ल्स 3/5 है, इसका मतलब मेरे को क्या निकालना है 3/5 ऑफ 50। तो 3/5 इंटू 50 हो जाएगा, तो क्या निकल जाएगी गर्ल्स निकल जाएगी, फिर 50 में से अपन गर्ल्स कर देंगे तो बॉयज निकल जाएंगे। एक तो वो ऑप्शन है। सेकंड ऑप्शन ये है कि अपन को जो फ्रैक्शन दिए हुए होते हैं ये हमेशा 1 में से होते हैं, तो मैं इसमें क्या करूं 1 में से 3/5 कैंसिल कर दूं, 1 में से 3/5 सब्सट्रैक्ट कर दूं, तो क्या जो आएगा ना वो बॉयज का आ जाएगा, बॉयज का फ्रैक्शन आ जाएगा। अब मैं क्या करूं दिस ऑफ 50 कर दूं, मतलब वो जो फ्रैक्शन आया उसको 50 से इंटू कर दूं तो बॉयज सीधे आ जाएंगे। तो कोई सा मेथड अपना सकते हैं, दोनों सेम ही है। अपन ये करते हैं कि पहले गर्ल्स निकाल लेते हैं फिर बॉयज निकाल लेंगे। तो नंबर ऑफ गर्ल्स इक्वल टू क्या, मेरे को क्या पता है 50 स्टूडेंट्स है 3/5 गर्ल्स है, तो 3/5 ऑफ 50 तो क्या हो जाएगा 3/5 इंटू 50। मुझे पता है जो होल नंबर होता है वो न्यूमरेटर में इंटू होता है, फिर 50 3 ज़ा 150/5, तो क्या आ जाएगा 30 आ जाएगा। अब नंबर ऑफ बॉयज क्या आ गया मेरे पास, नंबर ऑफ गर्ल्स आ गया, तो नंबर ऑफ बॉयज इज नॉट ए बिग डील, दैट वी कैन से दैट द टोटल इज 50 स्टूडेंट्स। तो जो अब मेरे पास सुनो, जो बॉयज नहीं है वो गर्ल्स होंगे, जो गर्ल्स नहीं है वो बॉयज होंगे। तो 30 अगर 50 में से 30 अगर गर्ल्स है तो 20 बॉयज होंगे, तो ये जो नंबर ऑफ बॉयज 20 आ गया, ठीक है, सिंपल। ये हो गई है अपना जो प्रैक्टिस टू बी परफेक्ट 2.2 है, ये अपना कंप्लीट हो गया है 5th 6th 7th क्वेश्चन। अब मैं क्या करूंगी, अब मैं डिवीजन ऑफ फ्रैक्शन सिखाऊंगी। तो डिवीजन ऑफ फ्रैक्शन कैसे होता है, मैंने क्या क्या पढ़ा था, मैंने पढ़ा था कि पहले तो अपन ने एडिशन पढ़ा था, एडिशन और सब्ट्रैक्शन साथ ही पढ़े थे। तो एडिशन और सब्ट्रैक्शन में अपन ने क्या देखा था कि 3 टाइप के होते हैं, अपने डिफरेंट टाइप के फ्रैक्शन पढ़े थे। फिर एडिशन और सब्ट्रैक्शन में अपन ने क्या देखा था कि 3 टाइप के होते हैं, या तो न्यूमरेटर सेम हो या डिनोमिनेटर सेम हो या दोनों ही डिफरेंट हो। तो न्यूमरेटर सेम होगा, तो मैंने बताया था कि अच्छा वाले फ्रैक्शन नहीं होते हैं, न्यूमरेटर सेम होता है। तो अपनी ट्रिक थी भाई, न्यूमरेटर सेम होता है तो अलाइक फ्रैक्शन हो जाते हैं, और अच्छे वाले नहीं होते हैं तो उल्टा काम करते हैं, जो बड़ा होता है उसको छोटा दिखाते हैं, जो छोटा होता है उसको बड़ा दिखाते हैं। और जो मेरे पास डिनोमिनेटर सेम वाले फंक्शन थे वो लाइक फ्रैक्शन होते हैं, लाइक फ्रैक्शन अच्छे वाले होते हैं, तो जो बड़ा होता है उसको भी बड़ा दिखाते हैं। और तीसरा था कि दोनों ही डिफरेंट है, दोनों ही डिफरेंट है तो कंपैरिजन के लिए तो कुछ बचा ही नहीं ना, तो अपन क्या करते थे एलसीएम निकालते थे, और क्या करते थे वी कन्वर्ट दी बोथ फ्रैक्शंस इनटू लाइक फ्रैक्शंस। तो अपन क्या करते थे उन दोनों फ्रैक्शंस को लाइक फ्रैक्शंस में कन्वर्ट करते थे, और फिर देखते थे कि बड़ा कौन सा है वो बड़ा हो जाएगा, क्योंकि लाइक फ्रैक्शन अच्छे वाले होते हैं। तो अपन ने वैसे तो क्या देखा था, मैंने वैसे देखा था कि एडिशन और सब्ट्रैक्शन कैसे करते हैं। फिर मैंने मल्टीप्लिकेशन की बात की थी, तो मल्टीप्लिकेशन में मैंने क्या किया था कि न्यूमरेटर विल बी मल्टीप्लाइड विद न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर विल बी मल्टीप्लाइड विद डिनोमिनेटर सॉरी। तो ऊपर वाला ऊपर वाले से, नीचे वाला नीचे वाले से, ये अपन ने थ्योरम पढ़ा था वहां पे। अब मेरे पास एक केस और था भाई, होल नंबर इनटू फ्रैक्शन आ जाए तो क्या होगा। तो मैंने बताया था कि होल नंबर आ जाए तो होल नंबर को न्यूमरेटर में काउंट करेंगे, तो होल नंबर इनटू न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर विल बी सेम, बिकॉज होल नंबर को अपन लिख सकते हैं होल नंबर अपॉन 1। तो 1 अगर अपन को डिनोमिनेटर से इंटू करना है तो वही आएगा। तो मैंने क्या बताया था कि होल नंबर जो था उसको अपन न्यूमरेटर से इंटू करते हैं, ठीक है, कि होल नंबर को अपन न्यूमरेटर में मानते हैं और डिनोमिनेटर विल बी सेम। अब मेरे पास क्या केस आया है, और
फिर अपने पास एक चीज और आई थी कि ऑफ वाले के लिए जैसे 3/5 ऑफ 50, 3/4 ऑफ समथिंग, तो 3/4 ऑफ 20, तो ऐसे जो ऑफ वाले केसेस आते हैं उनमें अपन इनटू का साइन लगा देते हैं, मतलब ऑफ इज रिप्लेस्ड बाय इनटू, ऑफ को अपन इनटू से रिप्लेस कर देते हैं। ऐसे क्वेश्चन भी अपने पास आए थे। अब अपने पास क्या आ गया है, डिवीजन ऑफ फ्रैक्शन। अब सब्ट्रैक्शन हो गया, एडिशन हो गया, मल्टीप्लिकेशन हो गया, बचा क्या, डिवीजन बचा। तो डिवीजन ऑफ फ्रैक्शन अपन करेंगे। डू यू नो दैट डिवीजन इज द रिवर्स प्रोसेस ऑफ मल्टीप्लिकेशन? सबको पता है डिवीजन क्या होती है, मल्टीप्लिकेशन की रिवर्स प्रोसेस होती है। वी नो मल्टीप्लिकेशन ऑफ फ्रैक्शन, सो द डिवाइड ऑफ फ्रैक्शन बाय अ होल नंबर जस्ट मल्टीप्लाइड बाय द रेसिप्रोकल डिवीजन, लेट अस अंडरस्टैंड दिस। ये सब कुछ नहीं है, थ्योरी नहीं पढ़ेंगे, सीधा एग्जांपल से समझेंगे, थ्योरी अपन को समझ में नहीं आती, ठीक है। तो इसमें क्या दिया हुआ है, फाइंड द रेसिप्रोकल ऑफ फॉलोइंग। अब मेरे को एक बात बताओ, रेसिप्रोकल क्या होगा? रेसिप्रोकल जो वर्ड है, ठीक है, समझना इस चीज को। रेसिप्रोकल की स्पेलिंग देख लो पहले, तो ये होती है, इसको रेसिप्रोकल पढ़ते हैं। अब रेसिप्रोकल क्या होगा, न्यूमरेटर विल बी डिनोमिनेटर एंड डिनोमिनेटर विल बी न्यूमरेटर, दैट्स कॉल्ड रेसिप्रोकल, दैट्स इट, ठीक है। तो मैंने क्या बोला कि जैसे 3/5 है, 3/5 है तो न्यूमरेटर कौन है, देखो थोड़ा सा इसको अपन ढंग से समझ लेते हैं, क्वेश्चन आया है तो कर पाए। तो रेसिप्रोकल के लिए क्या करते हैं अपन, रेसिप्रोकल के लिए अपन ये करते हैं कि न्यूमरेटर डिनोमिनेटर बन जाता है, डिनोमिनेटर न्यूमरेटर बन जाता है। जैसे 3/5 है तो न्यूमरेटर कौन है, 3, तो ये क्या बन जाएगा, डिनोमिनेटर, और ये डिनोमिनेटर क्या बन जाएगा, न्यूमरेटर। उल्टा कर देते हैं, ऊपर वाले को उठा के नीचे, नीचे वाले को उठा के ऊपर, ठीक है, खत्म। बस यही करते हैं कि इसको ऊपर ले जाते हैं, जो नीचे है वो ऊपर चला जाएगा, जो ऊपर है वो नीचे आ जाएगा। बस यही कॉन्सेप्ट है रेसिप्रोकल का, कि रेसिप्रोकल मतलब उल्टा, रेसिप्रोकल का मतलब ही उल्टा ही होता है, रेसिप्रोकल मतलब उल्टा कर देंगे फ्रैक्शन को। अब मेरे पास ये एग्जांपल है, फाइंड द रेसिप्रोकल ऑफ द फॉलोइंग, फाइंड द रेसिप्रोकल ऑफ द फॉलोइंग। तो मैं क्या करूंगी, तो मतलब रेसिप्रोकल की जो डेफिनेशन अपन अगर प्रॉपर डेफिनेशन देखें तो वो ये होती है कि रेसिप्रोकल किसी भी जो फ्रैक्शन का क्या होता है कि उस फ्रैक्शन में ऐसा क्या मल्टीप्लाई करें कि 1 आ जाए। रेसिप्रोकल क्या होता है, रेसिप्रोकल इज द फ्रैक्शन, कि अपन किसी फ्रैक्शन में उसके रेसिप्रोकल को मल्टीप्लाई करेंगे तो वो 1 आ जाएगा। तो अब मुझे पता है, इसको मैं इंटू करूं, 5 3 15, 3 5 15, तो 15 1 हो जाएगा, ठीक है। इससे ये कैंसिल, इससे ये कैंसिल, 1 आ जाएगा। तो मेरे को क्या पता है कि अब मेरे को इस ऐसा रेसिप्रोकल की कोई डेफिनेशन याद नहीं रखनी, कोई काम नहीं आती, बस समझाने के लिए था कि रेसिप्रोकल क्या होता है, किसी भी फ्रैक्शन में मैं उसके रेसिप्रोकल को इंटू करूं तो वो 1 आ जाता है। तो रेसिप्रोकल क्या है, अपन को ऐसी फ्रैक्शन फाइंड करनी है जिसको अगर मैं फ्रैक्शन में इंटू करूं तो 1 आ जाए। अब मेरे को ऐसा कुछ नहीं याद रखना है, मेरे को क्या याद रखना है, उल्टा, रेसिप्रोकल मतलब उल्टा। अब मेरे को ये क्वेश्चन एग्जाम्पल नंबर 15 ये सबकी कॉपी में करना है सबको होमवर्क में, 5, 6, 7 तो करना ही है, इसमें तो कुछ पूछने वाली बात ही नहीं है। फिर एग्जाम्पल नंबर 15 भी करना है, फाइंड द रेसिप्रोकल ऑफ द फॉलोइंग। तो 3/5 का क्या हो जाएगा, 5/3 हो जाएगा, और 8/3 का क्या हो जाएगा, 3/8 हो जाएगा, खत्म, कुछ नहीं है। देखो अब नोट भी पढ़ लेते हैं, नोट लगाया है किसी ने। इफ फ्रैक्शन इज गिवन इन एज मिक्स्ड फ्रैक्शन देन कन्वर्ट देन इन इम्प्रूव्ड फ्रैक्शन, हाउ यू कैन, मतलब इसमें लिखा हुआ है कि अपने को अगर मिक्स्ड फ्रैक्शन दिया, मिक्स्ड फ्रैक्शन क्या, मैं इतनी देर जिसको कंपोजिट फ्रैक्शन बोल रही थी, जैसे क्या दिखाऊं आपको, ये हैं, ये हैं, इन सबको किताब वाले ने क्या बोला है, मिक्स्ड फ्रैक्शन बोला है। ये सब क्या है, ये मिक्स्ड फ्रैक्शन है। तो मिक्स्ड फ्रैक्शन हो तो मिक्स्ड फ्रैक्शन का सीधा रेसिप्रोकल नहीं होता, उसको पहले अपन को कन्वर्ट करना पड़ता है सिंपल वाले फ्रैक्शन में। इम्प्रॉपर फ्रैक्शन इसने वर्ड प्रोवाइड किया है। इम्प्रॉपर फ्रैक्शन क्या होता है, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन क्या होता है कि मतलब वो छोटे के ऊपर बड़ा बैठा वाली कहानी थी ना अपनी, वो ट्रिक बताई थी कि प्रॉपर फ्रैक्शन क्या होता है। प्रॉपर फ्रैक्शन क्या, सही वाले फ्रैक्शन। प्रॉपर फ्रैक्शन मतलब बड़े के ऊपर छोटा बैठा है, मतलब सही चीज है। इम्प्रॉपर फ्रैक्शन मतलब छोटे के ऊपर बड़ा बैठ गया, मतलब डिनोमिनेटर जो छोटा है न्यूमरेटर बड़ा बैठ गया, तो उसको इम्प्रॉपर फ्रैक्शन बोलते हैं। तो मतलब उस मिक्स्ड फ्रैक्शन जो होगा वो हमेशा ऐसे ही होगा। तो मिक्स्ड फ्रैक्शन को अपन सीधा रेसिप्रोकल नहीं कर सकते, उसको इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना पड़ेगा, फिर रेसिप्रोकल होगा उसका। इफ यू वांट टू फाइंड आउट द रेसिप्रोकल ऑफ ए होल नंबर कंसिडर 1 एज डिनोमिनेटर। अब मेरे को क्या पूछा है कि होल नंबर का मैं रेसिप्रोकल कैसे करूं। मान लो मिक्स्ड फ्रैक्शन का, तो मैं कैसे कर दूंगी कि मिक्स्ड फ्रैक्शन को इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में मैं चेंज कर दूंगी, फिर उसका रेसिप्रोकल कर दूंगी। पर मेरे को दे दिया होल नंबर, 2 दे दिया होल नंबर, इसका रेसिप्रोकल करो, तो इसको कहा मैं ऊपर नीचे ले जाऊंगी। तो मेरे को क्या पता है
कि अगर मेरे को 2 दिया हुआ है तो उसके डिनोमिनेटर में 1 मान सकती हूँ, तो मैं आपको हमेशा ही बताती आई हूँ कि इसके जो डिनोमिनेटर में अपन 1 मान सकते हैं, क्योंकि अपन 1 को 2 से डिवाइड करेंगे तो 2 ही आएगा। ठीक है, तो ये सेम है, तो इसको करेंगे, इसका रेसिप्रोकल करेंगे तो हाफ हो जाएगा, तो ये रेसिप्रोकल है 2 का रेसिप्रोकल क्या हाफ हो जाएगा। मतलब उनको अगर होल नंबर का रेसिप्रोकल करना है तो डिनोमिनेटर में 1 मान लो। ठीक है, एग्जाम्पल नंबर 16, एग्जाम्पल नंबर 16 क्या है, ये करना है सबको कॉपी में। एग्जाम्पल नंबर 15, एग्जाम्पल नंबर 16 और एग्जाम्पल नंबर 17। ठीक है, इसका रेसिप्रोकल करना है 3/5 इसका रेसिप्रोकल करना है। तो पहले तो इसको अपन क्या करेंगे, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में कन्वर्ट करेंगे, तो क्या होगा, डिनोमिनेटर विल बी सेम, 7 into 3, इसको 3 इससे मल्टीप्लाई करके ये ऐड कर देंगे, तो क्या हो जाएगा 7 3 21 + 5/7, तो क्या हो जाएगा 21 + 5 26/7। रेसिप्रोकल इक्वल टू ऊपर वाला नीचे, नीचे वाला ऊपर का कॉन्सेप्ट, ये 7 ऊपर आ गया, 26 नीचे चला गया, ये हो गया क्वेश्चन। बहुत इजी, रेसिप्रोकल वाले क्वेश्चन वेरी इजी। एग्जाम्पल नंबर 17 क्या है मेरे पास, 6 का करना है रेसिप्रोकल, 6 का करना है, तो 6 का मैं क्या करूं, 6 को मैं क्या लिख सकती हूँ 6/1। मैंने कहा ना होल नंबर दिखते ही रेसिप्रोकल के लिए 1 डाल दो डिनोमिनेटर में, तो रेसिप्रोकल क्या हो जाएगा, ऊपर वाला नीचे, नीचे वाला ऊपर, तो ये नीचे है, ये ऊपर आ जाएगा, ये ऊपर है, ये नीचे आ जाएगा, 1/6। बहुत गंदा लिख दिया। ठीक है, ये करना है अपन को। तो आज का वीडियो यही खत्म करेंगे अपन, पर अपन को होमवर्क देख लेते हैं एक बार। होमवर्क में क्या करना है, 5th 6th 7th क्वेश्चन, देन 15th एग्जाम्पल, 16th एग्जाम्पल और 17th एग्जाम्पल। आज डेट है 2011, यहाँ तक अपन ने किया है। नेक्स्ट वीडियो में वी विल स्टार्ट विद डिवीजन ऑफ ए फ्रैक्शन बाय होल नंबर। ठीक है, तो आज के लिए गुड बाय।